Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Now, if the good morning is finished, then mute your mobile. Mute your mobile if the good morning is finished. Morning, sir. Khushi Singh, mute the mobile. Kirti Tiwari. Yes. Kirti Tiwari, mute the mobile. Then Aditya. Yes. The lesson is carbon and compound. We were learning the carbon and compound, and yesterday I have given you the model of the, you can say, the simple model of the carbon dioxide, and you can say sulfur, the model of the crown model of the sulfur, or the ring-like structure of the sulfur. Now, the next topic is the versatile nature of the carbon. What is the reason why the carbon makes so much of the compound or too much of the compound in compared to the other element? If you will see the periodic table, there are total 118 elements. How many elements? 118 elements are there. And if you will see, then only carbon makes about 3 million of compound. What is the number? 3 million of compound. Whereas you can say all other element, that means 117 element produces, you can say, less than 3 million compound. बेटा ये बात मेरा समझ में आ रहा है? केवल अकेले कार्बन ऐसा 118 एलिमेंट में जो 3 मिलियन से ज्यादा आपके कंपाउंड बनाता है, जबकि पूरे 117 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल को मिला देने के बाद भी ये 3 मिलियन कंपाउंड नहीं बना पाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों है? कार्बन के साथ ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इतने सारे ये कंपाउंड बना लेता है, जबकि सारे एलिमेंट मिल करके भी उतने कंपाउंड नहीं बना पाते हैं? यही टॉपिक है यहाँ पे डिस्कशन का, मेजर जो टॉपिक है हमारा, कि ऐसा क्यों, क्या खास प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर पाई जाती है, या क्यों ऐसा ये करता है. हम जैसा कि स्टार्टिंग में चैप्टर के चर्चा कर चुके हैं, एवरीथिंग दैट वी यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ, they are made up of the carbon. Almost all the things, you can say, from the CNG, LPG, your books, your copies, your food material, you can say your medicine, your doors, windows, and all the things, almost you can say 99% of the substances are made up of the carbon. लगभग 99% जो सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं वो आपके कार्बन के ही बने हुए होते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा आपके कंपाउंड बनाने वाला केवल कार्बन है, जबकि बाकी 117 मिलकर के भी उतना नहीं बना पाते हैं. तो आखिर रीजन होना चाहिए. कैन एनीबडी कैन गिव द आंसर व्हाट मे बी द रीजन? यस. Now for giving the answer, you can unmute your mobile. Yes, Diya. Sir. Yes, sir. Sir, because it has 4 electron, it can share. 4 electron it can share. ठीक, आपने सही बताया. ठीक, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 2 and 4. That means the valence electron, number of valence, just the number of valence electron is 4. आप कह रहे हैं इसके वजह से ये इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ये ना? यस सर, वो गेन या लॉस कर सकता है कभी. ठीक ठीक ठीक. यस सर. ठीक, अब मैं दूसरा एक और बात कर रहा हूं. सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 284.
इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 ही है। क्यों नहीं सिलिकॉन बनाता है, क्यों कार्बन ही बनाता है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस वन। अब बताएं सर। क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है। भैया, सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सर कार्बन में यूनिक बॉन्ड होता है, वो बहुत स्मॉल होता है। यस, द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू द स्मॉल साइज। इसका साइज जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल, बड़ा होता है। 2 ही ऑर्बिट पाए जाते हैं। और जबकि इसका साइज क्या होता है? बिग होता है, इसके मुकाबले में बिगर होता है। और इसमें 3 ऑर्बिट पाए जाते हैं। यू आर लुकिंग, इसके वजह से। खैर, एनी हाउ, यहाँ तक बात समझ में आया? अब हम दोनों पॉइंट की चर्चा करेंगे, जो जो खास खास पॉइंट है जिसके वजह से 3 मिलियन कंपाउंड बनाता है, उसकी चर्चा करेंगे। बढ़िया क्वालिटी बढ़िया दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्वालिटी दे रहा हूँ। यही तो क्वालिटी बट समझ में आता है। Number 1 is catenation power. What do you mean by catenation power? Sir, it has unique ability to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large Carbon. Yes. Long chain. Yes. It's form a long chain. Yes, yes. Carbon have unique ability to form a long chain. Unique ability to form the bonds, to form the bonds with the other carbon atom. Now, more than this, one more thing is there. The carbon atom may be arranged in rings, long chain, ठीक, long straight chain, Branches. straight chain, branch, and the third one, rings, and ring like structure. तीनों में पाए जाते बेटा ring like structure. मोबाइल तुम्हारे पास ही ना रहा। What happened? कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन एटम अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है। और जब एक कार्बन एटम अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, देन इट में फॉर्म द स्ट्रेट चेन, इट में फॉर्म द ब्रांच चेन, और इट में फॉर्म द, यू कैन से, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. The 3 structure can be. And now, may I rub it? No, sir. No, sir. No, sir. yes, sir. Just see. Sir, note If you'll talk No, about sir. the straight chain, sir, note करना है। okay, note it. Then we can just explain like this. CHHH. इतने लोग पढ़ा रहे हैं, कितने तरीके का पढ़ा रहे हैं। What happened? ये कुछ और डिफिनेशन बता दिए हैं। अलग पार्ट पढ़ाया है, बहुत बेहतर पढ़ाया है। किसी का मत देखो, टाइम पढ़ा है उसपे कहीं घंटे में नहीं पढ़ाया है। Mute your mobile. Who is this? I will remove you. Stop the discussion among yourself. If you have to ask any question, you can ask. If I say that give the answer, then you have to give. सर, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल मतलब पिक्यूलियर नेचर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर।
that I was discussing. Okay, sir. Now see here, one carbon atom is attached with the other, and the second one is attached with the third one is attached with the fourth one. That means 4 carbon atom are attached with each other. एक दूसरे के साथ क्या हुए, ये चारों कार्बन एटम जुड़े हुए हैं. That means they are forming the straight chain. कैसा चेन बना रहे हैं, कैसा चेन बना रहे हैं? Straight chain. Now may I rub the downwards? नीचे का थोड़ा मिटा दें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखें दूसरा, कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है. यहाँ पर भी देखिए 4 ही कार्बन है ना, 4 ही कार्बन, 4 ही कार्बन है ना. नाउ सी हियर हाइड्रोजन 1 2 3, ऑक्टेट इज कंप्लीट. 2, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना कंप्लीट. भाई इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना इस कार्बन के. एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 2 4 2 6 2 8. अब इस कार्बन की अगर बात करें तो 2 2 4 2 6, यानी कि एक लाइन और अगर हम नीचे खींच दें तो 8 हो गए. इसका भी हो गया कंप्लीट. समझ में? Yes. अब रही बात इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक, तो 2 और 2 4 हो गए, एक यहाँ पर 6 और एक नीचे कर देते हैं 8. हो गया 8. Yes, sir. इसकी अगर बात कर लें तो एक ऊपर, एक यहाँ पर, एक नीचे, 8 हो गए. इसके भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गए. अब दोनों का जरा फॉर्मूला देख लें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 और H कितने हो जाएंगे, 10 होगा. काउंट कर ले. Yes. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम C4H10 सेम होगा फॉर्मूला. मगर ये दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है और ये कैसा है, ये आपका ब्रांच. कैसा है, ब्रांच चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर. दोनों की प्रॉपर्टी यानी कि इसके गुण जो होंगे अलग अलग होंगे. हैव यू गॉट इट? Yes, sir. Yes. तो थोड़ा सा रिंग में अब चलें. हाँ बोलें. Yes. हाँ से ये बताइए. आगे बढ़े. Yes, sir. क्या हुआ? हाँ से अरे भाई स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया. अब आपका एक रिंग लाइक बचा हुआ है. तो रिंग लाइक का अगर देखें, कार्बन कार्बन अब यहां पर देख लीजिए जरा ध्यान से. एक लाइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन. ये 2 लाइन का मतलब कितने हो गए, 2. यानी 2 लाइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. एक लाइन अब यहाँ अगर खींच दें और एक हाइड्रोजन डाल दे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर. 6. और एक यहाँ पर फिर खींच करके एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Hello. 8. नाउ देयर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. 8 इलेक्ट्रॉन इज देयर. नो, 8 इलेक्ट्रॉन इज देयर. अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, इट इज कंप्लीटेड. Complete हो गया. Now let us move to this carbon. Now 2 and 2. Yes. 4. And this one 6. 6 and 2 8. इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब रही बात इस कार्बन की बात करते हैं.
2 4 सर हाँ दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं सर दिख पता रहा ना है? क्या हो जाए सर, जब बोल रहे हैं कोई। हु इज दिस? नाम तो फाइंड करो। सर लग रहा है कुछ सिस्टम में चेंजिंग हुआ है आपके, बार बार तो हट जा रहा है आपका मतलब। यस सर, जब कोई बोल रहा है तो सर हट जा रहा है। तो क्यों बोल रहे हो तुम लोग? उसको बोलना ही पिन कर बंद कर दो। लो, पिन कर दो। जरा सर का वीडियो पिन कर बोलना दो। बंद कर दो। जब मैं पढ़ा लेता हूँ तब मैं पूछूंगा, तब उसके बाद बोलो। अभी बोल रहा है। अब दिख रहा है ना? जस्ट सी 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस Yes, sir. कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो sir. गया। अब इसकी बात करें 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसकी बात करते हैं 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। Now this one 2 to 4, 4 to 6 and 6 to 8। This one 2 to 4, 4 to 6 and 6 to 8। This one 2 to 4 to 6 and 2 8। सारे कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। सारे कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। Yes, sir. They are satisfied Yes. and the formula will be C6 and H12 C6H12. and the name will be cyclohexane। साइक्लो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? साइक्लो का मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। Have you got it? So carbon is found. Yes, carbon is found in all the three forms: straight chain, branch chain, as well as the ring-like structure. That's why the number of carbon compound are, you can say, numerous in number. एक कारण तो ये हुआ। Now in the same point, we can discuss one more thing that we have read earlier about the single bond, double bond, and the triple bond. Triple bond. Yes. What you are asking? सर ये बोल रहे हैं तो सर अभी बार बार दिख नहीं रहा सर, ये म्यूट कर रहे हैं। बेटा मत बोले प्लीज। हाँ, about the first one I have given you that they are of the three types: straight chain, branch chain, and the ring like structure. Due to this property, the number of carbon compound increases. The second property is the, you can say, सर yes say सर ये ब्रांच वाले स्ट्रक्चर में सर इसमें तो 9 ही हाइड्रोजन है बस। 9 कैसे जी? कैसे 9 होगा? ये देखिए 3 4 और यहाँ पे एक, यहाँ पे अभी मिटाया था मैंने, 4 3 7 और 7 3 10। यस सर, ठीक है। It's okay. Now afterwards Yes, we will sir. see the single bond, double bond, and triple bond. Let us take the example of ethane. Ethane means two carbon atom. Now see here, this will be like this. Octet is complete, 2 2 4 2 6 2 8, correct? This one 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8. Is it okay? This is known as ethane and the bond is single. Bond कैसा है? Single. Just see the next one. Single bond. Yes, the next one, C double bond C. Now here there is double bond. That means
2 electron for one line and 2 electron for the second line. That means 4 electron are present there. Then there is the need of only, you can say 4 electron. 4 and 2, 6 electron. 6 and 2, 8 electron. This side also 4 and 2, 6. 6 and 2, 8. Now what is the formula? Formula of this one becomes C3, C2, H6. 4. Formula of this became C2, H4. And this will be ethene. What is the name? E-N-E. Ethene. And this one A-N-E. And the bond is double. Bond is double. And the property of both ethane and the property of ethene are different from each other. ये दोनों की प्रॉपर्टी, हालांकि दोनों के अंदर 2 ही कार्बन एटम है, मगर इसके बावजूद दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? They vary from each other. Now the third one. इथाइन. सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया. सेकंड वाला क्या समझ में नहीं बेटा? डबल बॉन्ड है. If there is double bond means 2 electron for this single line and 2 electron for this one. 2 to 4 electron. And one line is there, then 4 or 2, 6 line, and 6 and 2, 8 electron. 8. That means the valence is satisfied for this carbon. For this carbon, if you talk 2 and 2, 4, 4 to 6, 6 to 8, the valence is satisfied. Yes. और इसका फॉर्मूला C2H4 हो जाएगा. इथीन क्या जाएगा? यस से. इज इट ओके? यस सर. आगे चलें. सबको म्यूट कर दीजिए. मीथेन का फार्मूला कैसे बना वो बता दीजिए. सबको म्यूट कर दीजिए ना, कुछ दिख नहीं रहा है. यस सर, जब कोई बोल रहा है तो सर कुछ भी नहीं दिख रहा है. सर का वीडियो पिन कर लो. डबल टैप करने से हो जाएगा. प्रोपेन छूटा है. हाँ सर इथेन का फार्मूला कैसे होगा? प्रोपेन. सर बार बार कोई माइक ऑन करके बोल रहा है ना, तो आपका वीडियो हट जा रहा है. अरे यार प्रॉब्लम. पिन कर लो सर स्क्रीन. Just see about the ethene. I have told you ethyne now. In the case of the ethyne, there are also 2 carbon atoms and the bond is triple, 3 lining. Now the bond is triple means 2 electron, 2 electron and 2 electron means 6 electron. 1 hydrogen will be here. It will become 8. How many? 8. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. Now here also 1 hydrogen. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. And its formula will be C2H2. और इसको हम क्या कहेंगे? इथाइन कहेंगे. ट्रिपल बॉन्ड. Yes, and the bond will be triple. I think you have got it. Single bond, double bond, and the triple bond. Anybody have any doubt? Then ask. No sir. No. The first point I have told you, just remember it. First point I have told you, carbon form 3 millions of the compound or more than 3 millions of the compound according to our chemist due to the 3 types of the, you can say catenation power, that is straight chain, branch chain
and ring-like structure. And I have shown you the example also. The second point I have told you that 3 types of the bond are also found in the carbon, you can say molecules or the compound. Like there may be single bond, there may be double bond, or there may be triple bond. And according to the bonding, or you can say straight chain, or you can say branch chain, or the ring-like structure, their properties varies from each other. Have you got this point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ से सर हाँ जो हाइड्रोजन का नहीं सिखाए थे कि पेज नंबर 60 पे है, तो वो नहीं बना सकते थे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह पे? Beta, we are learning about the carbon, not about the hydrogen. Just I have given you at that time example that the, you can say covalent bonding is also found in the other atoms also. Like example is hydrogen. You can say the other example is oxygen. The other example is your nitrogen. Nitrogen में भी covalent bonding पाया जाता है. उस समय मैं आपको covalent bonding बता रहा था. और अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये केवल कार्बन बता रहा हूं कि कार्बन के अंदर क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्यों कार्बन इतना रिएक्टिव है, या क्यों कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं. अब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. हैव यू गॉट इट? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Now, the third point, why it forms too much compound or 3 millions, more than 3 millions of the compound. Third point, you can say carbon forms. सर बीच मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यही ना शो करे कि ट्रिपल बॉन्डिंग है कि डबल बॉन्डिंग है? हाँ, line means bonding, it is showing the bonding. Carbon forms bond with 4 other carbon atom. 4 other carbon atom. Just like बेटा ये एक कार्बन हुआ तो ये अलग अलग 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, ऐसे करके. बात समझ में है? तो कार्बन आपके कह सकते हैं 4 कार्बन एटम के साथ एक साथ जुड़ सकता है, क्योंकि सबके पास क्या क्या एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास यहाँ पे होगा, इस वजह से जुड़ सकता है. इसके अलावा कार्बन के साथ तो ये बनाता भी है, इट ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विथ मोनोवेलेंट एटम. मोनोवेलेंट कौन होगा जी? मोनोवेलेंट एटम कौन सा होगा? एनीबॉडी? हाइड्रोजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोवेलेंट एटम, जिसकी वैलेंसी एक हो. कौन होता है हाइड्रोजन? हाँ, वैलेंसी जिसकी बनो, जैसे हाइड्रोजन आपका मोनोवेलेंट एटम. मोरओवर हाइड्रोजन के अलावा भी है सर बहुत सारा, बहुत है. फॉर्म्स सर लेकिन भी कार्बन है. बॉन्ड विथ सर नाइट्रोजन सर, just I'm telling, bond with oxygen, nitrogen, सल्फर, yes, nitrogen and sulfur. सल्फर सर, क्लोरीन भी है. हाँ, क्लोरीन भी, सल्फर एंड क्लोरीन. क्लोरीन फ्लोरीन सब हो सकता है. Chlorine. And one more thing, why it forms bond with the, you can say, I have told you, hydrogen, carbon, and you can say oxygen, nitrogen, and you can say sulfur and chlorine. And all the bonds it form with the either with the carbon
either with the hydrogen, either with the oxygen, either with the nitrogen, or with the sulfur or the chlorine. They are, you can say, very much stronger bond. ये bond जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? They are too much stronger. Why they are stronger? Because the size of the carbon is large कहाँ से यार? Size of the carbon is small. Yes. Small, sir. Yes. सर भी Yes, लिखना है। लिख लीजिए। Due to the small size of carbon, सर कितना जल्दी मिटा दे रहे हैं। small size of carbon, it have proper hold on shared pair of electron. जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल होता है। शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको पकड़ करके रखता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसके बॉन्ड क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। Have you got it? सर फोर्थ वाले का एग्जांपल क्या है? कौन से फोर्थ वाले का बाबू? फोर्थ वाले का ड्यू टू जो दिस लिखे हैं जो हाँ ओके, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन इट हैव प्रॉपर होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने मैंने अभी तक आपके बना करके दिखाए हैं उन सारे के अंदर देखेंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे दो कार्बन बनाए, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसका साइज छोटा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है? होल्ड करके रख सकता है, और इन दोनों को ये कार्बन भी आसानी से होल्ड करके रख सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन भी पकड़ करके रख सकता है और ये कार्बन भी बड़े जबरदस्ती यानी कि जोर के साथ पकड़ करके रखता है, बोल करके इसके बॉन्डिंग कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। हैव यू गॉट इट? कहीं का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जितना मैंने एग्जांपल दिया सब जगह आपका बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में था, वो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। हैव यू गॉट इट? एनी मोर डाउट? Any more Yes, doubt? sir. I think time is running out. सर हाँ आप फोर्थ में लिखे ना, ड्यू टू द साइज ऑफ कार्बन, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, क्यों लिखे हैं? Due to the small size of carbon, it have proper hold on shared pair of electron. यानी कि छोटे साइज कार्बन के छोटे साइज होने की वजह से इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी तरीके से उसको पकड़ करके रखता है। Have you got it? Yes, sir. So Yes, let's see the other thing tomorrow. Have a good day. कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे कल? हाँ, इससे कौन आगे, सा टॉपिक पढ़ाएंगे? इससे आगे वाला। सर हाँ, आप पेज 62 का ये फर्स्ट और सेकंड नहीं बताएं क्या? कौन सा फर्स्ट सेकंड? पेज नंबर 62 का पॉइंट 1 पॉइंट 2। एक मिनट, पेज नंबर 62 कह रही हैं? हाँ फर्स्ट का वही तो बताएं सर आज। अभी क्या बताएं? वही तो बताएं। तुम पढ़ी नहीं हो बेटा, उसको दोबारा पढ़ लेना। जब दोबारा पढ़ोगी तो जो मैंने पढ़ा है वही पॉइंट वहां मिलेगा। ओके बाय। सर हाँ सर, कार्बन के अलावा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और किसी में नहीं होती है क्या? कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन जितनी किसी और में नहीं पाई जाती, सबसे ज्यादा कह सकते कार्बन में पाई जाती, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन के अंदर पाई जाती है। मगर सिलिकॉन ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 एटम इसके एक दूसरे के साथ बाइंड हो सकते हैं
बट दे आर टू मच रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और कार्बन के अंदर मिलियंस ऑफ कार्बन कैन ज्वाइन विथ ईच अदर बट दे आर नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होते। समझ में आया? सिलिकॉन 7 या 8 मैक्सिमम हो सकते हैं, और जबकि कार्बन के अंदर मिलियंस। ओके, गुड।